मैं पंजाबी बहुत बढ़िया बोल सकता हाँ, पंजाबी लिख सकता हाँ जी। मैं पंजाबी च किताब लिखी हुई है ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ जी ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ 8ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੈਲਪ ਬੁੱਕ जी। पंजाबी च लिखे हुए हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैं बीएससी केमिस्ट्री से ऑनर्स हूँ। ओके, वो वहीं बिहार में करके आए थे हमने आप? बिहार में ही किया था। ठीक है। पंजाब के इस खरड़ से 30 किलोमीटर दूर खन्ना खमानो ये जो जगह है, मैं इतनी दूर साइकिल से जाता था किताब बेचने के लिए और वापस आता था, यानी कि 60 किलोमीटर डेली में साइकिल चलाता था। जन्मभूमि तो मेरा बिहार है लेकिन कर्म भूमि मेरा पंजाब है। जी जी जी। मैं जितना भी इस पंजाब को दूं वो कम होगा मेरे लिए। ओरेकल जो है इस समय दुनिया में टॉप 5 जो रिचेस्ट पर्सन है उसका एक मालिक है, ओरेकल कंपनी का मालिक है जी। लैरी एलिसन उसका नाम है और ओरेकल के मालिक हैं। ये जितनी भी बैंक चलती है उसका जो डाटाबेस है वो ओरेकल में ही चलता है जी। और मैं उस डाटाबेस का एक्सपर्ट हूँ। कोई ऐसा स्टेट नहीं जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के लेवल के लोगों को मैंने नहीं मिला हूँ जी कि जैसे इस धरती का नाम है पंजाब। जी। बहुत कम लोग जानते होंगे पंज मतलब 5, आब मतलब पानी। जी। ठीक है, 5 नदियों से घिरा हुआ ये प्रदेश है और वहाँ पे पंजाब बेआब हो रही है। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਿੱਥੇ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। हाँ बिल्कुल ਤੇ बिल्कुल। ਕਿਰਾਏ ਦੇ 2 ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਈਏ ਭਜਾਓ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟ ਤੋਂ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਧੱਕੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ। ਭਈਏ ਭਜਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਠਾਕੁਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, 20-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿਹਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, IAS ਆਫਿਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, PCS ਆਫਿਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, IIT ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰੈਕਲ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ 60-70 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਠਾਕੁਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠਾਕੁਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जी। थोड़ा पंजाबी 2 शब्द बोलो। मैं पंजाबी बहुत बढ़िया बोल सकता हाँ, पंजाबी लिख सकता हाँ जी। मैं पंजाबी च किताब लिखी हुई है ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ जी ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ 8ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੈਲਪ ਬੁੱਕ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਡਾ 2 ਕਿਤਾਬ 1998-99 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ मैंने किताबें भी बेची हुई। अब आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं क्योंकि मैं दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। 25 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। देखो जी, हमारे मैं यहाँ पंजाब में पहली बार 1988 में आया था जी।
उस समय मेरी बहन यहाँ खरड़ में रहती थी, तो उनको लेकर के आया था। यहाँ पे एक पानीपत वूलन मिल हुआ करता था, उसमें हमारे जीजा जी हैं वो काम करते थे जी। तो हम लोग जानते थे, और इस सिलसिले में पहली बार 1988 में आया, फिर वापस गया, पढ़ाई लिखाई करी। 95 में मैं दिल्ली में डाबर कंपनी छोड़ करके, किसी कारण से मैंने डाबर कंपनी छोड़ी और कुछ नया करना चाहता था, तो यहाँ खरड़ में उस समय आया था। खरड़ बहुत छोटा हुआ याद, आप मुंडी खरड़ में आए थे। मुंडी खरड़। तो चूंकि चंडीगढ़ बहुत अच्छा शहर है, ब्यूटीफुल सिटी नाम कहते हैं, मुझे अच्छा लगा और मैं सोचा कि यही कुछ करूँगा जी। और उस सिलसिले में यहाँ पे आया। तो मेरी जो एक्चुअल सफ़र है वो 96 से यहाँ पे है जी। और मैं बहुत अच्छा लगा। मैंने डाबर की कंपनी छोड़ के आया था, तो मेरे पास कुछ काम नहीं था, तो हमने यहाँ पे बहुत कुछ राइज किया। स्टार्टिंग हमने कैसे करी, जो मैं अपने पहले बताओ, आप जो BDPO साहब वाली बात बताओ, आपने कितना गरीबी में रह के यहाँ थोड़ी एजुकेशन ली, कंप्यूटर सेंटर वाली बात वो थोड़ी बताओ, जो मैं जानता हूँ आपके बारे में। जी, एक्चुअल में क्या हुआ कि जब मैं डाबर कंपनी छोड़ दिया था तो हमारे घर के लोग ने मुझे पागल घोषित कर दिया था जी, क्योंकि एक अच्छी खासी नौकरी थी, डाबर एक इंटरनेशनल ब्रांड था, उसको मैंने छोड़ दिया था जी, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमारे घर के लोग ने मुझे पागल घोषित कर दिया था, लेकिन मुझे पता था कि मैं पागल नहीं हूँ जी। और मैं उसी सिलसिले में यहाँ पे आया था अपने बहन के यहाँ पे कुछ दिन के लिए। हालांकि मैं बहन के पास रहता नहीं था, मैं अलग घर लेके रहता था, खाना मैं बहन के घर में ही खाता था जी। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने अपने भांजी को, उस समय 8वीं में पढ़ती थी, उसको इंग्लिश का कुछ पढ़ा रहा था, एक वर्ड उसको नहीं पता था, तो मैंने कहा उसे डिक्शनरी में देखो। डिक्शनरी देखने में टाइम लग गया, तो मुझे लगा कि शायद बच्चों को डिक्शनरी देखने नहीं आती है। तो मैंने क्या किया, जो वर्ड उस बुक में जैसे आया था वैसे ही मैंने एक तैयार करके एक हिंदी, मतलब इंग्लिश टू हिंदी एंड पंजाबी मैंने किया। पंजाबी मुझे नहीं आती थी, तो मैंने किसी का हेल्प लिया और वो करवा के मैंने छाप करके और बेचना शुरू किया। मैंने उस किताब का पब्लिकेशन जो है वो NP पब्लिकेशन रखा। N का मतलब होता है निर्मला, जो मेरे माँ का नाम, P का मतलब होता है फूलकांत, मेरे पिता का नाम। तो और उस पर जो मैंने लोगो दिया वो गुलाब के फूल का दिया जी। गुलाब का फूल देने का रीज़न ये था कि गुलाब के फूल अगर आप लेने जाएंगे तो आपको कांटे भी चुभेंगे, कि गुलाब का फूल के साथ कांटा भी रहता है। तो ये जो जीवन है, अगर आप कांटा से डरोगे तो फूल नहीं मिलेगा। जैसे पंजाब में भी कह रहे हैं भैया भगाओ, वो कांटे ही हैं जी, असल में फूल गिर रहे हैं वो। हाँ, एक्चुअल में क्या है वो एक अलग बात है, हम उस पर बाद में आएंगे। तो इस तरह से मैंने वो बुक लिखी। फिर हमारे पास तो साधन कुछ था नहीं। अच्छा, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैं BSc केमिस्ट्री से ऑनर्स हूँ। ओके, वो वहीं बिहार में करके हमने बिहार में ही किया था। ठीक है। और मैं केमिस्ट्री से ऑनर्स था। उसके बाद मैं यहाँ आया था डाबर में नौकरी छोड़। वो भी आपने गरीबी में की? आपने बहुत गरीबी इतना कि मेरे पास में ट्यूशन पढ़ने के पैसे ही नहीं थे। हमने जीवन में कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे जी। और कभी स्कूल के फीस नहीं दिए, कॉलेज के फीस नहीं दिए, हमेशा स्कॉलरशिप में पढ़ा जी, क्योंकि अपने पास था ही नहीं कुछ। हमारे माता पिता को नहीं पता होता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ या फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, उनको नहीं मालूम। मैं इस तरह से आप शुरू करें, वो क्या आगे हुआ था फिर मुंडी खरड़ में आ गया। मैंने वो बुक लिखी, बुक को मैंने साइकिल पे बेचना शुरू किया। पंजाब के इस खरड़ से 30 किलोमीटर दूर खन्ना खमानो, ये जो जगह है, मैं इतनी दूर साइकिल से जाता था किताब बेचने के लिए और वापस आता था। यानी कि 60 किलोमीटर डेली में साइकिल चलाता था। किताब कहाँ बेचते थे आप? मैं स्कूलों में बेचता था, स्कूलों में जाता था, उनको मोटिवेट करता था कि आपके बच्चे के लिए अच्छे हैं, आप लीजिए। स्कूल वाले मना करते। बिहारी साइकिल पे पंजाबी किताब स्कूल में पंजाब में बेच रहा था। जी जी जी। हाँ। उच्चा पिंड है कि यहाँ पे, उच्चा पिंड संगोल। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे कहा कि आपके जैसे आज से बहुत साल पहले एक MBD एक बुक हुआ करता था, उसके डायरेक्टर आए थे। ओके। वो भी साइकिल पे आए थे। अच्छा। और आप भी साइकिल पे आए हो, आप जिंदगी में बहुत कुछ करोगे जी। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपकी किताब ना लगाऊं तो। मैंने कहा देखिए, आपको नहीं लगाना है मत लगाइए, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि आपके टीचर को ये चीज़ नहीं पता है जो इस किताब में लिखा है। तो जब मैंने ये बात उनको कही तो कहते हमारे टीचर से पूछ लो। मैंने कहा बुलाओ सारे टीचर को। और हमको तो कॉन्फिडेंस था। मैंने एक क्वेश्चन पूछा जिसके जवाब वो टीचर नहीं दे पाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो टीचर नहीं जानते थे, हो सकता है प्रेशर में आके उन्होंने जवाब ना दिए हों, तो वो इम्प्रेस होकर के उन्होंने वो बुक लगवाई। ऐसे बहुत सारे स्टोरी है और काम चल पड़ा। उच्चा पिंड संगोल की गल करते जी, उच्चा पिंड संगोल, जहाँ पे एक म्यूजियम भी बना हुआ है आज के डेट में।
हड़प्पा ते महेंद्रगढ़ का है ना, है पुराना इतिहास है साढ़े पंजाब ऐसे ही का। हम जी। एक स्कूल में गए तो वहाँ के एक प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि उस समय 8वीं की बुक थी हमारे पास। उन्होंने कहा आप 10वीं का भी बुक लिखो। मैंने कहा मैडम 10वीं की बुक तो तैयार है, हमारे पास पैसे नहीं है छापने के लिए। जी। क्यों? क्योंकि मेरे घर के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे और यहाँ मुझे कोई जान नहीं रहा था। जी। तो वहाँ एक मैडम ने कहा कि अगर मैं आपको पैसे का इंतजाम कर दूँ तो। मैंने कहा अगर आप कर देंगे तो मैं तो अभी छाप दूंगा। जी। फिर उन्होंने कहा, एक बैंकर के पास गए, बैंक वालों ने मना कर दिया, लोन नहीं दिया? लोन नहीं दिया। कितना लोन था? उन्होंने पूछा कितना चाहिए, मैंने कहा मुझे 10,000 रुपये चाहिए। मतलब एक बिहारी को पंजाब में 10,000 नहीं मिले, फिर भी वो कामयाब हो गए और यहाँ के लोग 50 लाख रुपया खर्च के यूएसए जा रहे हैं और डिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ से। हाँ चलो आगे कंटिन्यू करिए। तो उसमें क्या था कि लेकिन वो जो बैंक मैनेजर थे उन्होंने कहा देखो एज पर लॉ मैं आपको बैंक पैसे नहीं दे सकता हूँ क्योंकि कोई आपका गारंटर नहीं है जी। और लेकिन मैं आपके जज्बात को, आपके हिम्मत को देख करके मैं आपको पैसे दूंगा जी। और उस सरदार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो जहाँ भी होंगे उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दिए। नाम याद है तो बता दो। मैं नाम भूल गया हूँ उनका, सॉरी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पंजाब का जितना ऋणी हूँ शायद ही मैं किसी का ऋणी हूँ। पंजाब ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैंने भी पंजाब को दिया जी। ऐसा नहीं कि नहीं बाद में बात करेंगे आपने क्या दिया। जी ठीक है। और फिर हमने वो 10वीं की किताब लिखी और वो किताब धूम मचा दिया। मतलब पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बेस पे वो बुक लिखा था। उस समय यहाँ पे मोहाली में जो एजुकेशन बोर्ड है उसके चेयरमैन से भी मैं मिला जी। उनको मैंने बोला और उन्होंने शायद मेरी मदद भी करी। आसपास के खरड़ के आसपास जितनी भी स्कूल है उस समय के लोग अगर देख रहे हों तो शायद उनको याद आ जाए कि मेरी बुक वो ज़रूर पढ़े होंगे जी। और बहुत कामयाब हुआ। उसी दौरान हमें एक वीडियो साहब मिले, सरदार दर्शन सिंह जी। दर्शन सिंह बीडीपीओ थे, खमानों में थे मेरे ख्याल। वो खमानों में थे, उस समय खमानों में थे। मुंडी खरड़ में रहते थे। जी मुंडी खरड़ में रहते थे। वो एक एसटीडी पे मुझे मिले, एसटीडी वाले ने हम दोनों को मुलाकात करवाया जी। जब मैंने उनको कहा कि मैं किताब लिखता हूँ तो वो बड़े आश्चर्य हुए। कहते यार आप में टैलेंट है, आप आईएएस की तैयारी करो। मैंने उनको बताया कि करना तो मैं भी आईएएस चाहता हूँ लेकिन क्या है कि मेरे घर के लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने उनके कहे बगैर डावर की नौकरी छोड़ दी थी जी। तो कहते कोई बात नहीं, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो कमाल हो गया। जैसे कहते हैं ना भगवान कहीं और नहीं है, भगवान किसी न किसी रूप इंसान के रूप में मिल जाते हैं। वो सरदार दर्शन सिंह जी मेरे लिए भगवान ही थे जी। उन्होंने कहा कि आप कहाँ रहते हो? मैंने बताया कि खरड़ में रंधावा रोड पे मैं रहता था। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे घर आ जाओ। उनके पास एक जीप थी, वो अगले दिन अपने ड्राइवर के साथ हमारे घर आए और सारा मेरा सामान उठा करके अपने घर मुंडी खरड़ ले आए। उनके ऊपर चवारे में उनका एक स्टडी रूम बनाया हुआ था। उनके घर में मैं 200-400 बार गया हूँ। जी। मेरे फ्रेंड थे वो किराए पे रहते थे, बाद में गया हूँ आपके बाद में 400 बार गया हूँगा। जी। और फिर मैं वहाँ आ गया। फिर मैंने उनको कहा कि सरदार जी ने मुझे वो पैसे दिए थे तो कहते पहले तो मैं आपका किताब सेल करवाता हूँ। वीडियो साहब अपनी गाड़ी पे मेरा किताब लेकर के खमानों और जो आसपास के स्कूल थे उसमें लेके गए, लोगों को मोटिवेट किया, हमारे किताब भी लगवाए जी। और फिर जो किताब बच गया कहते हैं इसको छोड़ो। और उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई में से मुझे पैसे दिए और वो पैसे जो मैंने वो मैनेजर साहब को वापस करना था वो भी वापस किए। कितने पैसे दिए उन्होंने? 10,000 उन्होंने दिए थे, वो 10,000 उनको वापस किए। ठीक है। और फिर उन्होंने मुझे 15,000 रुपये और दिए किताब खरीदने के लिए। फिर मैं दिल्ली गया, वहाँ से किताब लेके आया और हमने पढ़ाई। कौन सी किताब खरीदने के लिए? आईएएस के लिए। ओके। आईएएस की जो किताबें हमें चाहिए थी जी। दिल्ली में बुक फेयर लगता है, अभी भी लगा हुआ है। ऐसे ही टाइम था, यही समय था। और मैं बुक्स वगैरह लेके आया, पढ़ना शुरू किया। मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिए, फाइनली मुझे नहीं हुआ। तो उन्हीं का एक भतीजा वो कंप्यूटर का कोर्स जानता था तो मैंने उससे कहा यार मुझे कोई कोर्स बताओ कि मैं वो करके 1 लाख रुपया मैं कमाना चाहता हूँ। तो कहता सीधा 1 लाख रुपया? मैंने कहा मैं आईएएस की तैयारी वाला आदमी हूँ तो मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे सी लैंग्वेज बताया। तो चूंकि मेरे में भूख ज़्यादा था तो मैं सी नहीं बस सीधा जावा सीखा, फिर ओरेकल सीखा। वो कहाँ से? कंप्यूटर सेंटर से सीखा था मेरे ख्याल आपने? खरड़ नहीं, उस समय क्या था कंप्यूटर सेंटर तो था नहीं जी। तो वो जो उनका भतीजा जो अभी कनाडा में रहता है, सवनिंदर सिंह उसका नाम है, इस समय कनाडा में। मिला हूँ, आपने मिलाया उनसे मुझे? आपको मिलाया हुआ हूँ। तो सवनिंदर सिंह ने कंप्यूटर सेंटर तब तक बना लिया। तो मैंने कहा यार अच्छा है। तो हमने उसको कहा कि देखो मेरे पास पैसे तो है नहीं जो मैं तुमको दूंगा जी, तो मैं फ्री में तुम्हारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊंगा, वो जो पैसा होगा तुम लोगे और रात को मैं तुम्हारे कंप्यूटर पे ट्रेनिंग लूंगा। जी। मैं खुद से ट्रेनिंग कर लेता था जी। तो उस गली में मुंडी खरड़ में मैं और कुत्ता 2 ही जागता था जी। क्योंकि रात को और कौन जागेगा। कुत्ते भौंकते थे और मैं पढ़ता था, यही 2 हमारे काम होते थे। हमने इतनी पढ़ाई करी। आज भी खरड़ के बहुत सारे पुराने बच्चे होंगे जो अगर ये वीडियो देखें तो उनको पता लग जाएगा, जिनको मैंने जावा, ओरेकल,
C++, बहुत चीज़ें पढ़ाया हुआ है और बहुत रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सब मुझे सर बोलते हैं आज भी। इस तरह से मैंने वो सब सारी चीज़ सीखने के बाद हमने और भी कंप्यूटर की भी बुक लिखे और जर्नी बहुत से आगे गए और बहुत गुजरात यूनिवर्सिटी वाली बात बताओ, और साइकिल पे आपने नेशनल लेवल पे किताब बेची, वो थोड़ी बात बताओ। जी, वो क्या हुआ कि उस समय जब ये बात है 97-98 की, तो लोग ना उस समय जो कंप्यूटर चलाते थे तो वो माउस बहुत यूज़ करते थे, यानी उसको शट डाउन भी करना हो लैपटॉप को तो बड़े ऐसे करके माउस से, डेस्कटॉप को जो भी है। तो मैंने एक आदमी जो हमको ओरेकल पढ़ाया था 10 दिन के लिए, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे न्यूजीलैंड और वहाँ पे ना शॉर्टकट कमांड बड़ा चलता है, तो मैं वही शॉर्टकट कमांड सीख रहा हूँ। तो मैंने सोचा ये शॉर्टकट कमांड जो सीख रहा है, क्यों नहीं मैं ये सारा शॉर्टकट कमांड लिख करके मैं एक किताब ही छाप दूँ। तो मैंने एक किताब लिखी, यूज़ कंप्यूटर विदाउट माउस। अच्छा। और वो किताब बड़ा फेमस हुआ और यहीं मोहाली में ही एक आदमी को दिया, उसने फिर किताब बनाया। जो इस समय हमारे मित्र हैं हरमिंदर सिंह जी, मोहाली के रहने वाले हैं, आजकल कनाडा में रहते हैं। यही फेज़ 1 मोहाली में ही उनका ऑफिस। आई थिंक उनकी कंपनी भी IT कंपनी है मोहाली में, 7 फेज में, वही तो नहीं वो दूसरे हैं। ठीक है। तो उन्होंने फिर लिखा और वो किताब मैंने पूरे इंडिया में सेल किया। पहले तो यहाँ पे किताब सेल किया, साइकिलों पे सेल किया, उसके बाद पूरा इंडिया तो साइकिल से नहीं घूम सकता था, पैसे की भी तंगी थी, लेकिन हमने पैसे का कभी परवाह नहीं किया। स्थिति ऐसा हुआ कि कई बार बिना पैसे के ट्रेन में चढ़ गए, ये सोच करके बहुत करेगा तो क्या करेगा, टीटी आएगा पकड़ के जेल में डाल देगा। तो मैं बोलूँगा भैया यहाँ भी भूखे ही हैं, चलो जेल में भी रहेंगे, जेल में भोजन तो मिलेगा जी, जेलर को ही पढ़ाएंगे या जो लोग होंगे उन्हीं को पढ़ाएंगे, अपना तो कुछ था ही नहीं। तो इस तरह से ज़िंदगी शुरू करी, कुछ पैसे थे उसको लेकर के चला गया मैं बेंगलोर। पहले ये बताओ किताब आपने कहाँ बेची इंडिया में? इंडिया में मैंने पहले तो पंजाब में बेचा, उसके बाद एक दिल्ली में एक आदमी एक दिन होटल में मिल गया, वो कहता है कि मैं भुज में रहता हूँ, भुज गुजरात, तो आप वहाँ आ जाओ। मैंने कहा ठीक है जी, आप वहाँ पहुँचो, मैं ट्रेन पकड़ के पहुँच जाऊँगा। अपना क्या था, जनरल बॉगी में बैठना और पहुँच जाना, रिजर्वेशन कराने की तो औकात नहीं थी, तो बस जनरल बोगी जिंदाबाद, टिकट का क्या चिंता, जो होगा सो देखा जाएगा। कभी एसी कार में बैठे, एसी में बैठे नहीं थे उस समय? जी नहीं, ठीक है, एसी का तो मतलब ही नहीं था। ट्रेन एसी ट्रेन का एसी बोगी में तो मतलब ही नहीं था। तो बस बैठ जाते थे, चले जाते, तो चले गए भुज गए। तो वहाँ पे उन्होंने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से हमारी मीटिंग करवाई जी। तो वहाँ पे सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में हमारी बुक लगी, फिर वहाँ से महाराष्ट्र में लगा, क्योंकि हम तो खाना बदोश जिंदगी था अपना। यूनिवर्सिटी में लगी आपकी किताब? जी, गुजरात में और महाराष्ट्र में जी। तो उनके तरफ से उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई देखो, तो सब लोगों को पसंद आता था कि मान लीजिए हमें शट डाउन करना है तो शट डाउन कैसे करेंगे, तो विंडो बटन और यू दबाएंगे तो शट डाउन का बटन आ जाएगा, क्लिक करो, कहानी खत्म। वही चीज़ हम और तरीके से करते थे, तो ये लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं कि वो शॉर्टकट कमांड मैंने लिखे, वो तो ऑलरेडी कंप्यूटर में था, हमने कंपाइल किया, हमने वो चीज़ों को इकट्ठा करके कर दिया। कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ये जो आजकल सीखते हैं वो सब, चूंकि एक शौक था सीखने का। मतलब आपने कोई इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट में किसी में एडमिशन नहीं ली? जी नहीं, कंप्यूटर डिग्री कोई नहीं लिया? मेरे पास कंप्यूटर की कोई डिग्री नहीं है आज तक। अच्छा, कंप्यूटर कोई डिग्री नहीं है, लेकिन हमारे पास कंप्यूटर की कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जो बची हुई है। चाहे आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, जो कि बहुत एडवांस चीज़ें हैं जी। आजकल हर आदमी AI करता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। मैं उसका भी जानकार हूँ, उसके आगे बात करेंगे बहुत। इसीलिए आपको हम कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, ताकि साढ़े पंजाबियों ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मोटिवेशन मिले कि पंजाब ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ बड़ी उपजाऊ है, इतने फसल नहीं उगती, इतने कैलाश चंद्र ठाकुर वर्गे लोग भी उगते हैं, तो तुसी भी उग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, पंजाब की जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं जी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जी उन सारे लोगों का। कई लोगों के घर में हमने खाना खाया जी, कई लोगों ने मुझे रोटी खिलाया, कई लोगों ने मुझे चाय पिलाए, कई लोगों ने हमें पैसे दिए पढ़ने के लिए जी। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और यही वजह है कि जब मैंने पैसे कमाने शुरू किए तो मैं लोगों की मदद करना शुरू किया। वो बाद में सोचेंगे कैसे, मुझे पता है आपका, हम जानते हैं 25 साल से। दर्शकों दादा मैं पहली बार नहीं मिले, 25 साल तो जानते हैं ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ स्टोरी दसो, फिर गुजरात ਤੇ महाराष्ट्र तो बाद की होया आगे? गुजरात महाराष्ट्र के बाद क्या हो गया कि वो तो मैंने बुक सेल की, जो हमारा था कि मैं लिखूं। हमने हमारे उस पर नाम लिखा हुआ है कैलाश चंद्र ठाकुर, कॉपीराइट मेरा है, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल ठीक है। बड़े बड़े लोग मिले जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनको भी आश्चर्य लगा कि जिस बंदे ने
कुछ नहीं किया, वो बुक कैसे लिख सकता है। और वो चूंकि मेरा अपना था, आज भी है, चाहे तो हम दिखा भी सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है। तो फिर उसी क्रम में क्या हो गया कि अब मुझे जॉब करना था, तो मैं ओरेकल जानता था, तो मैं चला गया बेंगलोर गए थे? बेंगलोर गए। वहाँ पे जाने के बाद हमारे पास कुछ दिनों में पैसे ख़त्म हो गए। ओरेकल कितने दिन स्टडी की थी? मैं यहाँ पे खुद पहले ओरेकल सीखता था और अगले दिन दूसरों को सिखाता था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं वो जो सविंदर सिंह ने इंस्टीट्यूट बनाया था, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, हमने अनाउंस कर दिया कि हम लोग ओरेकल सिखाएंगे। तो पहले एक दिन हम लोग सीखते थे, अगले दिन सिखाते थे। पढ़ाते थे, क्योंकि अपने साढ़े को पैसे होंगे नहीं चाहिए, पैसे देने भी पैंदे, तो भाई पैसे आऊगा कितने। कितने दिन लाए तुझे ये सारे काम सीखने सिखाने? मैं डेली सीखते डेली सिखाना। ठीक है। और इस करके ऐसे एक्सपर्ट बन गए। फिर बेंगलोर में क्या हुआ? बेंगलोर में गए, बोल सकते कोई बात नहीं, मैं पंजाबी बोल लूंगा। मैं क्या बेंगलोर गए तो वहाँ पे ओरेकल कंपनी में मैं सीधा चला गया कि भाई मुझे ओरेकल आती है, आप मुझे जॉब दो। तो हमें नहीं पता था कि उस समय में BCA MCA बीटेक वालों को जॉब देते हैं, BSc वालों को जॉब ही नहीं देते हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। आप तो BSc केमिस्ट्री थे? मैं BSc केमिस्ट्री था, और हमारे पास कंप्यूटर की डिग्री नहीं थी जी। तो मैं ओरेकल में बनरघट्टा एक जगह है, बनरघट्टा, वहाँ पे ओरेकल की ऑफिस है, मैं वहाँ चला गया। तो सिक्योरिटी गार्ड अंदर ही नहीं जाने देता था। तो मैंने कहा यार कि आई नो इंग्लिश, आई कैन टॉक वट एवर यू से, आई एम वेरी गुड इन दैट। तो बोला नो 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 नो, यू कांट एंटर इनटू माय ऑफिस एंड ऑल, सो डू यू हैव एनी अपॉइंटमेंट? मैंने सो आई डोंट हैव एनी अपॉइंटमेंट। तो वो उसको लगा कि कोई पागल आ गया है क्योंकि मेरे पास तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। तो उसने क्या किया, एशिया पैसिफिक का एक मैनेजर थी शायद लेडी थी, तो उसको कॉल किया कि एक कोई आ गया है और ये कहता है कि मुझे जॉब चाहिए और ये जा भी नहीं रहा है। तो उसको समझ में शायद उनको आ गया, तो उन्होंने मेरे से बात किया फ़ोन पे, सिक्योरिटी गार्ड से ही बात करवाया। उन्होंने सोचा कि इसको किसी तरह से निकालें यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आई विल कॉल यू लेटर, यू जस्ट गिव योर रिज्यूमे, आई विल कॉल यू लेटर। तो आज तक मुझे वो कॉल कर ही रहे हैं। तो उन्होंने फिर कभी कॉल नहीं किया। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद मेरे जो कुछ पैसे थे वो सारे ख़त्म हो गए। तो अब मैं क्या करता था, मेरे पास 150 रुपये बचे हुए थे, 150 रुपीज़। तो मैंने क्या किया, जिनके यहाँ हम रहते थे उस समय ये लैंडलाइन चलता था, मोबाइल वगैरह था नहीं। तो मैंने उनसे परमिशन लेकर के उनका लैंडलाइन नंबर डाल करके मैंने एक पैम्पलेट छपाया। अच्छा जी, ठीक है। और उस पर लिखा, इफ़ यू वांट टू लर्न ओरेकल आई विल टीच यू इन 500। जबकि उस समय 50,000 रुपये लगते थे ओरेकल सीखने के। ओरेकल सीखने 50,000 लगते थे, 500 जी। और उसको हमने अखबार में डलवा दिया। अगले ही दिन बहुत सारे कॉल आ गए। अब हमारे लिए तो 1-1 रुपया मुश्किल था, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो 5 बच्चे मिल गए, मेरे पास 2500 रुपये आ गए जी। जिस आदमी के पास 100 रुपया नहीं, उसके पास 2500 आ गया, और हमारी गाड़ी चल पड़ी। उसके बाद मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए। फिर हमें कहीं पे बोला गया, वहीं पे बोला गया कि आपको ओरेकल के साथ एक और चीज़ आनी चाहिए। मैं सुनिया सी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ओरेकल ਚ ਵੀ जो उदो ऑफर लेटर मिल गया सी मेरे ख्याल नहीं, उस समय उन्होंने कहा कि एक और डिग्री आपको चाहिए तब दूंगा, नॉलेज चाहिए। ठीक है। विजुअल बेसिक एक है सॉफ्टवेयर। तो फिर मैं वापस फिर पंजाब आया। ठीक है। क्योंकि मुझे सीखने का तो अड्डा मेरा पंजाबी था, वहाँ मैं तो सीख नहीं सकता था क्योंकि अपने पास पैसे ही नहीं थे। फिर मैं आया यहाँ पे, फिर सविंदर सिंह को कहा यार विजुअल बेसिक सीखना है। फिर हम लोग कहीं से वो सॉफ्टवेयर का जुगाड़ किए, फिर वही रात भर कहानी, फिर हमने विजुअल बेसिक सीख ली। और इसी दौरान में मैं एक बार दिल्ली गया हुआ था। तो दिल्ली में क्या हुआ, रामकृष्ण मिशन से मैं जुड़ गया जी। वो एक अलग कहानी है। तो रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी से मैं मिला। क्यों मिला? क्योंकि मुझे किताब पढ़ने का शौक़ था। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, तो मैंने पूछा ये किसका राइटर, कहते ऊपर बैठे हुए हैं। तो स्वामी जी के पास गया, तो स्वामी जी अमेरिका जा रहे थे, तो उनके पास टाइम नहीं था। तो उनके जो बॉडीगार्ड है उन्होंने कहा नहीं यू डोंट हैव एनी अपॉइंटमेंट, सो यू कांट मीट। तो मैंने कहा ओके, आई डोंट वांट टू मीट हिम, जस्ट यू गिव द ऑटोग्राफ। तो वो अंदर लेके गए। तो स्वामी जी ने पूछा ये किसका है किताब, कहता वो बाहर करा, कहता उसको अंदर भेजो। अब सब लोगों ने, जब स्वामी जी ही कह रहे हैं मिलने को, तो मुझे कौन रोकता, मैं अंदर गया। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर जानता हूँ। तो मुझे अंग्रेजी में पूछा डू यू वांट टू हेल्प अस? मैंने बोला यस। मुझे लगा आधे घंटा 1 घंटे का कोई काम होगा, मैंने हाँ कर दी। बाद में मुझे पता चला 3.5 साल मुझे लगे वहाँ पे हेल्प करने के लिए जी। मैंने पूरा कंप्यूटर सेंटर ही डेवलप किया वहाँ पे। अच्छा, आपने दिल्ली में जो आज भी चल रहा है, आज भी रामकृष्ण मिशन है दिल्ली में, RK आश्रम मार्ग है, मोहाली बोलते हैं, मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे आप जाएं और किसी को पूछे तो कंप्यूटर सेंटर आज भी है। उत्थे कुछ देते हैं, तो पैसे देते कुछ? अब क्या था, अपने पास तो कुछ थे ही नहीं, तो वो एक हम तो कुछ मांग नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा यार आप यहाँ पे रहते हो, तो मुझे रहने का जगह दे दिया। और अब कंप्यूटर
ये हार्डवेयर की बात आई तो मैंने सवनिंदर सिंह को बुलाया। मतलब ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਹਿائش ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? कोई तनख्वाह नहीं मिली। चलो रोटी खानी थे कंप्यूटर और नहीं, वो मुझे उस समय 7,000 रुपया देना शुरू कर दिए। जी ठीक है। ये बात है 2004 की। 2004 7,000 तब तक हमारी शादी हो चुकी थी 2003 में। जी। अब हमारे घर के लोगों को लगने लगा कि यार ये तो शादीशुदा आदमी होकर के साधुओं के बीच में रहने लग गया। लेकिन चूंकि मैंने जवान दे दिया था कि हाँ मैं मदद करूँगा, तो हमने उसको 3.5 साल लगे डेवलप किया। तो फिर पंजाब हमारे उससे जुड़ा ही रहा, हम पंजाब आते ही रहे। वैसे दस दी दर्शकों ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਥੋੜੇ ਆਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਮਿੰਦਰ ਦੱਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। मैं आज भी उस पे काम कर रहा हूँ। ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਮਿੰਦਰ ਦੱਤ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? दिल्ली में होने के बाद क्या मैं पंजाब से फिर भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि मेरा रूट तो पंजाबी था। जी। क्योंकि हमने जो कंप्यूटर सेंटर वहाँ डेवलप किया उसमें पंजाब का बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि सवनिंदर सिंह को मैं कॉल किया, भाई आ जाओ मिलकर करते हैं। सवनिंदर सिंह आकर के सारा कंप्यूटर को इंस्टॉल किया, सारी चीज़ें की। सवनिंदर सिंह अगर ये वीडियो देखेगा तो उसको याद आ जाएगा। जी जी। बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, आजकल कनाडा में रहते हैं। भेजेंगे अपन भी। हाँ, उनको भी भेजेंगे। और इस तरह से हमने वहाँ पे सेवा करी। और फिर अब चूँकि हम शादीशुदा थे तो मुझे जॉब करना ही था, तो हमारे पास कंप्यूटर की डिग्री कोई नहीं थी, लेकिन नॉलेज था। फिर हमने इंटरव्यू देना शुरू किया और फिर हमें जॉब लग गया। कहाँ लगी पहली जॉब? पहली जॉब लगी हमारी पटनी कंप्यूटर मुंबई में। जी। 5.5 लाख रुपए सालाना के तौर पे लगा। कदों की गल है ये? 2007 की बात है। 2007 से 5.5 लाख रुपए ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸਾਲ ਦੀ। और पढ़ाई कोई नहीं की, डिग्री पढ़ाई मेरे पास कोई डिग्री आज भी नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, आज भी सर्टिफिकेट नहीं है। उस बाद क्या हुआ फिर? हमने फिर 1.5 साल के बाद ही जॉब क्विट किया। हमारी सैलरी हो गई 10 लाख। 10 लाख रुपए दूसरी कंपनी। फिर कंपनी थी दूसरी? दूसरी कंपनी थी ब्रिस्टल कोन करके कंपनी है, महिंद्रा की। महिंद्रा एंड महिंद्रा की ही कंपनी है जी। तो उसमें जॉब लगी। वहाँ पे हमारी पहली मतलब हमने चेंज किया तो 10 लाख हो गई। फिर हमने 2 साल के बाद फिर एक अपॉर्चुनिटी आया यहाँ पे मोहाली से, पंजाब से फिर हम जुड़ गए जी। एक यूएस की कंपनी एमरसन कंपनी है। एमरसन कंपनी से मुझे कॉल आया। उस समय मैं दिल्ली में रहता था, नोएडा में ऑफिस थी और गाज़ियाबाद में रहता था जी। तो मैंने देखा कि ये जो ऑफिस है ये मोहाली में है। चूँकि मैं मोहाली से जुड़ा हुआ था और हमने यहाँ से सेवा लिया हुआ था, तो मेरा मन में आया कि वापस हम पंजाब चलते हैं। जी। जन्मभूमि तो मेरा बिहार है, लेकिन कर्म भूमि मेरा पंजाब है। जी जी जी। मैं जितना भी इस पंजाब को दूं वो कम होगा मेरे लिए। थोड़ा एमरसन ते ओरेकल बारे दर्शकों दस दो की चीज़ है एमरसन ते ओरेकल, की चीज़ है, की काम करती है, जी इन्ने पैसे दे रही है? देखो, ओरेकल जो है इस समय दुनिया में टॉप 5 जो रिचेस्ट पर्सन है उसका एक मालिक है, ओरेकल कंपनी का मालिक है जी। लैरी एलिसन उसका नाम है। और ओरेकल के मालिक हैं। ये जितनी भी बैंक चलती है उसका जो डाटाबेस है वो ओरेकल में ही चलता है जी। और मैं उस डाटाबेस का एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, वेरी गुड। मैं ओरेकल क्रूड ऑयल मेरे को देख दिया, बहुत कुछ है जी। मतलब ओरेकल में बहुत कुछ है, अगर कहने लग जाऊंगा 2 घंटा उसके लिए लगेगा। फिर आपको ओरेकल में क्या हुआ? हाँ, तो वहाँ पे मुझे एमरसन में जॉब मिल गया जी। एमरसन में उसी ओरेकल के बेस पे जॉब मिला। इंटरव्यू दिल्ली में हुई और उसकी ऑफिस यहाँ पे मोहाली में। एमरसन था मेरे घर तो इतने जितने बैठे 5-6 किलोमीटर थे। जी 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 जी, क्वार्क सिटी में। मैं यहाँ आ गया, मैंने बहुत अच्छे काम किए। एमरसन का भी मैं बहुत धन्यवादी हूँ। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे अचीव किए। उत्थे पैसे कितने मिल रहे थे एमरसन स्टार्टिंग? एमरसन मैं जब यहाँ पे आया तो 10 लाख था, यहाँ पे मैं 15 लाख पे ज्वाइन किया। 15 लाख पे आ गए। मेरा पहले मतलब 2011 में मैं यहाँ पे आया जी। 11 फरवरी में मैं यहाँ ज्वाइन किया तो मेरी 15 लाख सैलरी थी जी। और 15 से मैं 25 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 35 हुआ, यानी कि क्या बताएं। और बहुत सैलरी लिया। लास्ट सैलरी कितनी थी थोड़ी एमरसन से? एमरसन से लगभग मेरा 50-55 के बीच में थी, एग्जैक्ट क्या बताऊँ। तो एक बहुत अच्छा था। और फिर कंपनी का एक पॉलिसी आया, कंपनी ने कुछ लोगों को मान लो थैंक यू कहना था कि भैया आप बहुत काम किए। कंपनी की अपनी पॉलिसी है, फिर भी कंपनी का मैं बहुत धन्यवादी हूँ क्योंकि कंपनी ने मुझे 1 साल का सैलरी एडवांस दिया जी कि अगर आप आज छोड़ते हो तो उन्होंने मुझे थैंक यू बोला। मैंने बहुत टोटल कितने पैसे मिले सी तो छड्डी कंपनी तो? लगभग 1.5-2 करोड़ मिला। सो दर्शकों 1.5 करोड़ रुपया नौकरी छड्डण दा 50-60 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਕਦੋਂ ਲਈ ਸੀ? पहली कार मैंने आपके कृपा से ही लिया था क्योंकि मुझे मोटरसाइकिल आज भी चलानी नहीं आती है जी, क्योंकि अपने पास था ही नहीं। मैं पहली कार सिखाई भी मैं ही सी थे, आपने सिखाई थी। हाँ। जी जी। पहली केड़ी कार सी? वो ऑल्टो थी। आल्टो कार है। एक मुंडा मेरा दोस्त है पमार नंगल दा है,
1 ਲੱਖ ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫੁਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕਿ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਕਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ 4 ਫੀਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਸੀ। 1,25,000 ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਿੱਥੇ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ 2 ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀ। मतलब पैरों तो बाहर कदे भी नहीं होए जी। हाँ आगे दसो। 1.5 करोड़। हाँ लगभग 1.5 करोड़ था। एक्चुअल में मैं एक बुक भी लिखने की कोशिश में हूँ, लिखूंगा ही। चलो मतलब एक सक्सेस स्टोरी है पंजाब दे उस बिहारी दी जिहड़ा हिंदी बोलदा ते पंजाबी बोलदा, अंग्रेजी बोलदा, होर बहुत सारियां भाषावां वालियां, उस पंजाब दे बिहारी कैलाश ठाकुर दी कहानी है। जिस पंजाब बारे कहा जाता है काम नहीं मिलता, जिस पंजाब बारे कहा जाता जमीन बेचो, माँ बाप के गल गुट्ठा दिओ, मैं तो अमरीका जाना, 50 ਲੱਖ ਲੱਗ जे, 60 ਲੱਖ ਲੱਗ जे, 70 ਲੱਖ ਲੱਗ जे। तो उस पंजाबियों बारे गल हो रही है जिन्होंने अमरीका का राष्ट्रपति कहना चल तू साडे देश के काबल नहीं, गलत तरीके नाल आया सी, चल वापस पंजाब दे विच। ते उसे पंजाब च कैलाश ठाकुर 50-50 60-60 ਲੱਖ रुपया 1.5 करोड़ रुपया कमा रहा। तो पंजाब बड़ी उपजाऊ धरती है, कल्ली फसलों वास्ते नहीं, कैलाश ठाकुर वर्गे मेहनती पंजाबी लिए भी बड़ी उपजाऊ धरती है जी। नहीं मैं बिल्कुल सही, आपकी बात उसमें कोई वो नहीं है। एक्चुअल में क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, लोग को हर किसी को मर्सिडीज चाहिए जी, लेकिन सवाल है कि क्या आप मर्सिडीज पे चढ़ने लायक हो जी। सबसे पहले खुद पूछना चाहिए कि आप क्या उसके लायक हो। मैं आपके पास 500 करोड़ है तो मैं आपकी बराबरी कर लूँ तो ये तो बेवकूफ़ी है। अब मान लीजिए अच्छा आपकी बात थोड़ी काटूंगा, सॉरी दर्शकों। एंड तक सपना होंदा जी कि मैं अपने पिंड 500 बिस्तरियां दे एक हस्पताल बनाना जी। ते तुसीं पिंड लई दसो की किता बिहार दे जी। मैं आज भी है सपना और मैं अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया है जी, और आज भी कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 2015 में, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ तो हम लोगों में जनेऊ होता है जी। तो उसके लिए मैं गाँव गया हुआ था तो मैंने देखा कि वहाँ पे बिजली तो आ चुकी थी मेरे गाँव में, लेकिन लोगों के घर में लाइट थी, बाहर लाइट नहीं थी, सड़कें अंधेरा रहता था। तो मैंने अपने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। मैंने कहा यार एक संस्था बनाओ, 10-10 रुपये सब जमा करो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव था कि 10 रुपये से होना कुछ नहीं है, लेकिन इनकी मुझे सपोर्ट मिल जाएगी। और सब लोगों ने कुछ दिया, 2000 के करीब जमा हुआ और मैं 10,000 रुपये अपना लगाया, 12,000 रुपये मैंने कुछ बल्ब लाए और 2-3 पोल छोड़ करके मैंने बल्ब लगवाए। और वहाँ के सरकारी ऑफिसर को जा करके बोला कि भाई इसको उतारना नहीं, ये एक मुहिम है। पहला काम मैंने वो किया जी। दूसरा काम, हमारे गांव के जो बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, मैंने एक अनाउंस किया, अगर किसी को लगता है कि वो पढ़ना चाहता है और पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है तो जहाँ उसकी गाड़ी रुक जाएगी उसको कंधा देने वाला मैं रहूँगा जी। किसी की फीस रुक गई, कोई बीटेक कर रहा है, फीस रुक गई, कोई बात नहीं, मैं दूंगा, आगे पढ़ो। ऐसा नहीं कि मैं पूरी फीस दूंगा, ऐसा मेरी सामर्थ्य नहीं था क्योंकि मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूँ, लेकिन मैं एक दे ही सकता हूँ। बेटी की शादी करनी हो, दिक्कत है, मैं करूँगा। कोई श्राद्ध कर्म में पैसे की दिक्कत है, अगर थोड़ी सी दिक्कत है तो मैं मदद करूँगा। और इस तरीके से मैंने गांव में किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाइए मेरे गांव में जी, पता कीजिए, सिर्फ मेरा नाम बताइए, आप लोगों को वही बताएंगे। और ये कोई मैंने बड़ा काम नहीं किया जी, मेरा ये ऑब्जेक्टिव था क्योंकि मैं गरीबी देखी है। 1 रुपये की कीमत क्या होती है वो मेरे से ज़्यादा कौन जानता है। चंडीगढ़ के 20 सेक्टर से खरड़ तक मैं पैदल गया हूँ क्योंकि मेरा साइकिल पंक्चर हो गया था 20 सेक्टर में। 1 रुपया मेरे पास नहीं था उस समय, उसके वो पंक्चर लगाने के लिए 1 रुपये लगते थे, संजोग से मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि महात्मा गांधी जब नमक आंदोलन हुआ था तो उन्होंने पैदल ही यात्रा कर दिया था। तो मैंने कहा भगवान ने सही सलामत पाँव दिया है शायद, क्योंकि मैं भगवान को मानता हूँ जी। तो मैंने कहा शायद भगवान हमारे पाँव का टेस्ट ले रहे होंगे। हमने एक हाथ से साइकिल पकड़ा और चलते चला गया, क्या दिक्कत है। एक सवाल मैं भी पूछना चाहूँगा जी। जी पूछो। पंजाब ते बिहार बारे की सोच है थोड़ी? देखो दोनों कमाल का स्टेट है, दोनों बहुत बढ़िया जगह है और दोनों में गहरा रिश्ता है। अब आध्यात्मिक तौर पे देखो तो आज भी हमारे सिख धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल बिहार में ही है, पटना साहब है। तो इसका मतलब हमारे भगवान, हमारा जो गुरु महाराज, वो भी जानते थे कि ये दोनों धरती अगर मिल जाए तो कमाल कर सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक फिल्म थी दोस्ती, एक लंगड़ा था और एक अंधा था। तो अंधे ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुमको लंगड़े को अपने उस पर बिठा लेता हूँ, मैं चलाऊँ, तू रास्ता दिखा और मैं तुमको चलता हूँ। तो दोनों मिलकर के कमाल करेगा। कमियां मत देखो, खूबियां देखो। चलो ठाकुर साहब, तुसीं
ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਘਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾ, ਘਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ? पंजाबी बहुत बच्चों को मदद की मैंने। की मदद की थी दसो? जैसे कई सारे बच्चे हमारे पास में मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। मैं यहाँ 5 फेस में रहता था जी। तो चूंकि मैं खुद तो IAS बना नहीं, लेकिन सपना था कि यार कोई दूसरा बच्चा IAS बने। तो जिनके घर में रहते थे उनकी बेटी उस समय बैंक ऑफ इंडिया पता नहीं किसकी क्लर्क की जॉब उनको हो गया था। मैंने कहा इतनी अच्छी लड़की है, मैनेजमेंट की हुई, क्यों नहीं इसको IAS में करवाते हो? कहते ये कर सकते हैं। मैंने इनको बताओ तो सही। वो लड़की ने किया, तैयारी करी, तैयारी तो उसने खुद किया, हमने रास्ता दिखाया, आज वो कमिश्नर लगी हुई है। मतलब IAS अफसर भी पंजाब च बनते थे कि बिहारी ने बनाए हैं? उसके बाद और वो सिविल सर्विसेज में पंजाब सिविल सर्विसेज में, नाम मैं उनका भूल गया, वो BDO साहब के रिश्तेदार थे जी। तो मैंने उनको ज़्यादा कुछ नहीं करी, वो उनके इंटरव्यू में मैंने मदद किया जी। कि इंटरव्यू कैसे देना है, क्या पोस्चर होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या मोटिवेशन होना चाहिए जी। क्योंकि मैं ये सब चीज़ तो फेस कर चुका। कौन की लगे हुए थे बंदे? वो पहले हवलदार के पोस्ट पे थे, मतलब पुलिस दे हवलदार से जज दे नायब कोर्ट जिन्हों कह देने हैं उनके उसमें थे। आज वो एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, नाम उनका मैं भूल गया हूँ, शायद अगर वो देखेंगे तो वो मुझे मेरे कांटेक्ट में भी है, मेरे मोबाइल में। और बहुत सारे लोगों को जानता, नाम तो मैं भी नहीं जानता, दर्जना मैं उन्होंने मुंडियां ते कुड़ियां नहीं जानता जिन्होंने पढ़ाया IAS PCS कंप्यूटर ते होर पता नहीं की कुछ। तो असी 25-25 किलोमीटर पैदल यात्रा भी की है, वो कदे आगे दसांगे जी। कई सारी लड़की मेरे पास में, किसी ने कोई बता दिया कि उनके पास जाओ वो आपको हेल्प करेंगे, BTech करके BCA करके मेरे पास आ गए। मैंने उनको ओरेकल सिखाया, क्योंकि मुझको तो पता है कि मैं तो जब BTech नहीं हूँ तब अगर मैं जॉब कर सकता हूँ तो ये तो BTech करी हुई है जी। मैं उसको 4 चीज़ें सिखाई, इंटरव्यू देना सिखाया, क्वेश्चन दिए, आज वो लोग कामयाब हैं। कोई लाख रुपया, कोई 2 लाख रुपया। बिहार के कई बच्चों को हेल्प किया, आज भी हेल्प कर रहा हूँ जी। आज के डेट में भी कई बच्चों को हेल्प कर रहा हूँ। एक तुसी मैं भी थोड़े नाल ही सी नदियां दी यात्रा की सी आपां जयंती माजी तो खरड़ तक, वो दसो अमिंदर दत्त खेती विरासत मिशन ते उस यात्रा बारे दसो की सी, वातावरण दे नाल जुड़ी हुई गल सी। देखो पता क्या चीज़ है, हमें इतना पता है कि जैसे इस धरती का नाम है पंजाब, बहुत कम लोग जानते होंगे। पंज मतलब 5, आब मतलब पानी, ठीक है। 5 नदियों से घिरा हुआ ये प्रदेश है और वहाँ पे पंजाब बेआब हो रही है जी। पंजाब पानी के कारण बेआब हो रही है जी। तो हम लोगों ने था कि भाई हमने जो इस पृथ्वी पे जन्म लिया है हम कुछ तो करें जी। हम ऐसे अगर चले जाएं तो फिर मनुष्य जन्म लेने का कुत्ते और हम में कोई फ़र्क नहीं है जी। अगर हर कोई आदमी ऐसे आए और चले जाए, मर्सिडीज और बुलेट लेकर के आए और चले जाए, तो इस जीवन का कोई फ़ायदा नहीं। तो एक सोच था कि इस धरती पे आए हैं तो कुछ करें। उतना ही नहीं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि 98-99 के बीच में हमने खरड़ में, मुंडी खरड़ में एक संस्था बनाया था। उस संस्था को लोग पैसे दिए, थोड़ा सा पैसा हो गया तो लोगों ने कहा कि चलो हम लोग ना गुरु महाराज का पाठ करवाते हैं। मैंने कहा भाई पाठ तो हर गुरुद्वारे में हो ही रहा है, हम लोग साफ़ सफाई करते हैं जी। और हमने लोगों को इकट्ठा किया और लोगों के घर में गए। मैं लाओ जी कूड़े दो, कहते आप तो कूड़े वाले लगते नहीं हो। मैंने कहा वाकई मैं कूड़े वाला नहीं हूँ। कहता फिर मैंने कहा आपको जागरूक करने आया हूँ कि ऐसा नहीं कि आप अपने घर से कचरा उठाओ और रोड पे फेंक दो, नहीं। ये बात है 2000 की जी। तो मैं रहने वाला तो बिहार का, लेकिन ये मैंने किया कहाँ पे, पंजाब में, क्योंकि हमारा एक वसूल है। मैं खरड़ वाले ने सिखाया कि सफाई रखनी चाहिए, कूड़ा बाहर ना सिटो जी। हमारा क्या था कि जिस पेड़ के नीचे आप रहते हैं जी, जिस पेड़ के नीचे रहते हैं उस पेड़ के को किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाओ, क्योंकि परमात्मा देखता है। और नदी यात्रा बारे भी तो थोड़ी पैदल आप इकट्ठे की थी। हाँ, वो यही था कि पंजाब की नदियाँ सूख रही है। अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो हमारे जो बच्चे आने वाले हैं, पीढ़ी हैं, वो तो मुझे गाली देने के अलावा और कुछ नहीं देंगे। कितों कितने तक यात्रा की थी? अब इतना तो याद नहीं। यहाँ सिसवा नदी स्टार्ट होता है, जयंती डैम तो लेके जी, ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਖਰੜ ਖਾਨਪੁਰ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਾਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਤਰਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੱਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ खेती कुदरती खेती च काम करते हैं ते ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਲਾ, ਉਦੋਂ साड़ी संस्था जी यूथ फाउंडेशन सेक्टर 17 च बिल्कुल वो किए हैं। उसके बाद में भटिंडा गया हुआ था, वहाँ पे हमारी एक NGO के माध्यम से मीटिंग थी कि उसके कैसे पानी का बचाव करें। हमने कई सारे सेमिनार किए हैं। मुझे यहाँ पे बद्दल कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था पानी के ऊपर में, मुझे बुलाया गया था, मैंने उसके लिए काम किए हैं।
तो ऐसे तो बहुत ਮੇਰੇ सारी ਖਿਆਲ यादें। ਪੱਤਲ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਮਤਲਬ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗੰਡੋਏ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੰਡੋਇਆਂ ਨਾਲ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਹਿੰਦਰ ਦੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਵਗੈरह वगैरह, ਇਹੀ ਗੱਲ है ना। मैं आज भी कर रहा हूँ। एक जी। डिकम्पोजर है जी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हम बाद में बात करेंगे। आपकी जो सक्सेस के बाद जो डाउनफॉल आया बिजनेस में उसकी बात नहीं, नहीं, वो करेंगे, सब ठीक है, कोई बात जी। नहीं। बस ये बातें। अब आपने कमाया तो बहुत है, जी। अब लॉस बताओ क्या हुआ, क्योंकि आप तो व्यापार करने वाले भी आ गए, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਪਾਰ 'ਚ ਲॉस ਵੀ ਹੁੰਦਾ, प्रॉफिट भी ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੋ ਡੁੱਬਣ ਦੀ। देखो ऐसा है, इसमें डूबना नहीं कहेंगे। जी। क्या होता है, हमारा क्या सपना था कि मैं कोई ऐसा नहीं था कि हमने पैसे कमा लिए तो बस हमारा हो गया। मैं अपने लिए सिर्फ नहीं जीना चाहता जी। था, मैं कुछ करना चाहता था। और जी। मैं करना किसके लिए करूँ, समाज के लिए ही करूँगा। तो अपने भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं भारत की बात कर रहा जी। हूँ, पंजाब उसमें भी आता है कि हम लोग कचरा का जो है ना, किसी को कचरा के बारे में कुछ नहीं पड़ा हुआ है। जी। अपने घर से निकालते हैं, सरकार बोलती है कि सेग्रीगेट करके रखो, कोई नहीं रखता है। जी। एक डस्टबिन में एक कूड़ा उठा करके मिक्स करके बाहर दे देते हैं, कहते हैं कूड़ा वाला ले जाएगा। कोई कूड़ा वाला नहीं होता है, कूड़े वाले आप हैं। जी। जो आप कूड़ा देते हैं, जी। कूड़ा उठाने वाला जो आया है वो आपका सेवा कर रहा है। जी। तो मैंने क्या किया, मैं एमर्सन में जो काम करता था, तो एमर्सन कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती थी 1927 से, जी। 1927 से। उसका नाम है इनसिंकरेटर। जी। वो कंपनी 2018 में उसके इंडिया में उन्होंने लॉन्च किया वो प्रोडक्ट को, तो मुझे भी बताया गया कंपनी में, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। तो 2018 में मैं कंपनी में था, तो जो बंदा इंडिया का मेन आया था उसको समझाने के लिए हम लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया गया। तो सब लोग अब कुछ देर के बाद अपने अपने सीट पे बैठ गए। चूँकि मेरे अंदर में तो कुछ था, मैं उस बंदे के पास गया, मैंने कहा भाई साहब मुझे इसका ना वो दे दो, लाइसेंस दे दो, मैं सेल करूँगा। तो कहते हैं आप कैसे सेल करोगे? मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि घर घर में ये लगे और कचरा ख़त्म हो। जी। तो कुदरती क्या हुआ, 2020 में ये सिचुएशन आया, कंपनी ने थैंक यू बोला। तो मैंने कंपनी का वो जो दूसरा डिवीज़न था, मैंने कहा मुझे इसका लाइसेंस दे दो सेल करने का। फिर मैंने वो लाइसेंस लिया जी। पंजाब का, जी। पंजाब और बिहार का लाइसेंस लिया, इनसिंकरेटर का। यूएस कनाडा में ये सब लोग जानते हैं। और मैंने वो काम शुरू किया, तो मुझे लगा कि मैं तो चक दे फटे कर दूंगा पंजाबी के भाषा में, जी। क्योंकि इतना कचरा है यहाँ पे चंडीगढ़ के आसपास, जहाँ तहाँ कचरा ही कचरा है। मैं सरकार को बताऊंगा, सरकार तो हंस के लेगी। तो मैं पंजाब के मुख्यमंत्री जी भगवंत मान को, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, जब वो एमपी थे, तब मैं उनसे मिलने के लिए संगरूर गया हुआ था। उਦੋਂ मुलाकात हो गई थी? उनसे मुलाकात उनके घर में हुई थी। जी। उनके एक मित्र हैं जिनके थ्रू मैं गया था, मिले। उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थे, वो एमपी थे। संगरूर में उनके घर गया था और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको देखेंगे। जी। खैर वो तो अलग बात है। तो उसमें मैंने पैसे लगाए। जो हमारा सपना था कि मैं भारत को स्वर्ग बनाऊंगा, कचरे मुक्त करूंगा। जी। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भगवान के बाद अगर किसी चीज़ का स्थान है तो वो सफाई का है। जी। अंग्रेजी में कहावत है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू द गॉडलीनेस। तो मुझे लगा कि यार मैं इसमें 2 पैसे भी कमाऊंगा और समाज का भी भला करूंगा। इसके क्रम में मैं भारत पूरा पैसा जो भी हमने कमाए थे वो हमने लगाए। हमने लगभग 2 करोड़ रुपया तो समझ लो ट्रेवलिंग में खर्च कर दिया। जी। मतलब 70,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई। जी। रिकॉर्डेड 70,000 किलोमीटर। हम मोहाली से अमृतसर, मोहाली से शिमला, मोहाली से दिल्ली ऐसे जाते थे जैसे लोग कोई मोहाली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कोई खरड़ आता है। मैं ऐसे डेली ट्रैवल करता था। भारत का ऐसा कोई ही कोना होगा, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, चाहे चेन्नई हो, मुंबई, मतलब हर जगह मुझे नाम बताओ मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं इतने ट्रैवल किए हैं इसको प्रमोट करने के लिए। कितने IAS अफसरां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ? ਤੁਸੀਂ दादे मेरे फोन करने का कोई ऐसा स्टेट नहीं जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के लेवल के लोगों को मैंने नहीं मिला हूँ। जी। गिनती करवाने लग जाऊंगा तो ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ? अभी 4.5 करोड़ का लॉस है। 4.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ जी। मतलब कमाया तुसी मेहनत करके गए, कोई गल नहीं 4.5 करोड़ रुपये बना हाँ, मैंने अपने घर से नहीं लाया। जी। हाँ, दुख की बात मेरे घर के लोगों को लगता है कि ये पैसे उनके पास बचे रहते, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है मैं गलत काम तो करूँगा नहीं। मैं नशे नहीं करूँगा, नशे बेचूंगा नहीं। यहीं रहते हुए फिर से हम 10.5 करोड़ कमाएंगे।
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਲੌਸ ਖਾਦਾ ਜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ। ਉਹ 4.5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੌਂਕੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ 50 ਲੱਖ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਘਾਟਾ ਖਾਦਾ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਘਾਟਾ ਖਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ IAS ਅਫਸਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਖਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ 40-50 ਕਰੋੜ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਪੈਸੇ ਮਾਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਭਈਏ ਨਾ ਭਜਾਓ, ਕਾਮਯਾਬ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਜੂਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੋਠੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 100 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਕੋਲ ਖੜਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਹਾਨੇ ਛੱਡੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।